morning. Good morning, India. Okay. Please settle down fast. তাড়াতাড়ি settle down করুন। আমরা সবাই স্মার্ট ভ্যালি অ্যাসোসিয়েট, তাই yes or no? আর আমরা একটা স্মার্ট ইন্ডিয়া তৈরি করব, yes or no? আজকে একটা হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম कंडक्ट करा होच्छे, एक स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम, स्वास्थ्य हेल्थ। इंग्लिश एक कथा आछे, इफ यू लूज योर मनी यू लूज नथिंग। आपनी यदि टाका हारिয়েছেন জীবনে কিছু হারাননি। इफ यू लूज योर फ्रेंड you lose something. আপনি যদি বন্ধু হারিয়েছেন জীবনে নিশ্চয়ই কিছু হারিয়েছেন। but if you lose your health you lose everything. আপনি যদি স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেন আপনি জীবনের সবকিছু হারিয়ে ফেলবেন। তাহলে হেলথ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসেট। আমাদের জীবনের সবথেকে বড় জিনিস হলো হেলথ। আর সেই হেলথের উপরে ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 অর্গানাইজেশন একটা প্রোগ্রাম কন্ডাক্ট করছে, দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান স্মার্ট ভ্যালি প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড। স্মার্ট ভ্যালি জন্য একটা জোরে হাততালি হোক। ফাস্টার এন্ড লাউডার। শোনাই নি দিয়া, শুনতে পাচ্ছি না। লিসেন লিসেন লিসেন। ফার্স্ট অফ অল we would like to thank the entire Smart Value management team, যারা আমাদের অ্যাসোসিয়েটসদের জন্য এত কিছু ভাবেন। এভরি টাইম, এভরি মিনিট, এভরি সেকেন্ড, প্রতি মুহূর্তে তারা কিন্তু আমাদের জন্য ভাবেন কি করে শুধু আমরা নই, আমাদের নেক্সট জেনারেশন যেন স্মার্ট ভ্যালু থেকে নিজের হেলথ, নিজের ফ্যামিলিকে সিকিউর করতে পারি। তাহলে স্মার্ট ভ্যালুতে যারা টপ ম্যানেজমেন্টে আছেন তাদের জন্য, অ্যান্ড অফকোর্স স্মার্ট ভ্যালু টপ সিনিয়র লিডার্স যাদের অক্লান্ত ডেডিকেশন পরিশ্রমের জন্য আজকে এই জায়গায় আমরা আছি, সবার জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যায়। ফার্স্ট অফ অল 3 में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जेखाने जहां पर द स्टालवर्ट्स ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री, जिनको बोलते हैं हम हेल्थ के बारे में सबसे ज्यादा वो जानते हैं, वो हेल्थ के एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, उनको आज यहां पर आमंत्रित किया गया है। दे हैव बीन इनवाइटेड, তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সো দ্যাট তারা কিন্তু আমাদেরকে হেলথের ওপরে বিভিন্ন অ্যাসপেক্টস নিয়ে তারা যেন ডিসকাশন করতে পারেন। এটা ফার্স্ট টাইম হচ্ছে ইন দ্য হিস্ট্রি অফ স্মার্ট ভ্যালু। তাহলে এবার আমাদের অ্যাসোসিয়েটসদের কিছু দায়িত্ব আছে, কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে, ইয়েস অর নো? সেই রেসপন্সিবিলিটিগুলোকে আমাদেরকে পালন করতে হবে। আমাদেরকে যেই কথাগুলো যারা বলবেন সেগুলোকে কিন্তু লিসেন করতে হবে, হিয়ার করলে চলবে না। We have to listen it very carefully, very sincerely. যে জিনিসগুলো তারা বলছেন সেটার একটা সাম আপ হবে নিশ্চয়ই। সেই সামারিটাকে আমরা আবার হয়তো যদি চেষ্টা করব নোট ডাউন করা সেটা করব। এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমাদের কিছু করতে হবে। আমরা সবাই কোঅপারেট করব তো, ইয়েস অর নো? ওকে, আজকে এই প্রোগ্রামটাকে কন্ডাক্ট করার জন্য যে মানুষটাকে আমি মঞ্চে ডাকবো, ওকে বলা হয় দ্য ম্যান উইথ আ গোল্ডেন হার্ট। एक सोने का दिल है उनका। ही इज अ मैन विथ अ गोल्डन हार्ट। লক্ষ লক্ষ মানুষের লাইফ চেঞ্জ করা একজন ইনস্ট্রুমেন্টাল ফ্যাক্টর। ইউথ আইকন বলা হয় তাকে অফ ইন্ডিয়া। যে মানুষকে শিখিয়েছে
যে কি করে ড্রিম দেখতে হয়, কি করে ড্রিমটাকে ফুলফিল করতে হয়, যে শিখিয়েছে। अगर आपके भीतर जज्बा है, अगर आपके भीतर जुनून है, तो आप नॉट ओनली अपने सपने को पूरा करेंगे, सपने को साकार करेंगे, आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे। जिनके सामने बहुत सारे सुपरस्टार्स भी उनके ग्लैमर के आगे फीके पड़ जाते हैं। तो इट्स माय ऑनर, इट्स माय प्रिविलेज टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर ललित अरोड़ा। ना जोरा ताली दिखलाई देওয়ার জন্য। Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। प्लीज टेक योर सीट्स। और ये सीटियां बंद कर दो भाई, रिकॉग्निशन में नहीं आए हो। अरे ओके, सो फ्रेंड्स, आज एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप सबकी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी, स्मार्ट वैल्यू की जिंदगी और पूरे भारत की जिंदगी में एक बहुत बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? आप सभी लोग तैयार हैं? तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग जो बैठे हैं, हम में से ज्यादातर लोग स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट हैं। यस, गुड। सो आज हम एक अलग रूप में यहां पर बैठेंगे, क्योंकि आज एक अलग अभियान में हम लोग काम करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आज से पहले भी हम लोग इस अभियान में काम कर रहे थे। हम में से बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आज हम सिर से पांव तक इस हेल्थ इंडस्ट्री में डूब जाना चाहते हैं। आप लोग तैयार हैं? सभी लोग? तो दोस्तों, आज मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं स्मार्ट वैल्यू के इस नरिश हेल्थ एंड वेलनेस जागरूकता अभियान में। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आवर ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव पाठक, जिनके विजन की वजह से, जिनकी सोच की वजह से, जिनकी दूरदृष्टि की वजह से आज यह दिन संभव हो पाया कि हम सब लोग आज एक छत पर, एक छत के नीचे पूरे भारत से लोग इकट्ठे हुए हैं और आज हम एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा अभियान जिसके लिए भारत सरकार अभी सोच रहा है और मुझे बहुत उम्मीद है बहुत जल्दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे एक अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान। पूरे भारत में हम लोग स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जब मुझे दिखाई देता है स्वच्छता से अगला पड़ाव जो है वो हेल्थ की जागरूकता है, सो हम उससे एक पड़ाव आगे चल रहे हैं। हम भारत के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि आने वाला इतिहास हमारा नाम याद रखेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या आप लोग हिंदी समझ पा रहे हैं? वंडरफुल। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आज का जो ये प्रोग्राम है, आपने ऐसा प्रोग्राम कभी अटेंड नहीं किया होगा। आज तक आपने प्लान शो अटेंड किए, आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, आपने फॉलोअप करने के तरीके सीखे, आपने रिकॉग्निशन प्रोग्राम देखे, बट भारत के महान डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के जरिए हेल्थ के ऊपर जानकारी आज हम सब लोग पहली बार लेने के लिए इकट्ठा हुए। यस और नो? सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जहां जाते हैं वैसे हो जाते हैं। वो कहावत है, जैसा देश वैसा भेष, हमें करना पड़ता है। हम जब प्लान शो में जाते हैं तो हम नोट्स बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा। यस, सीनियर बोलता है नोट्स बनाओ क्योंकि आपको भी कल को प्लान शो करना है। जब हम फीडबैक पे जाते हैं तो सीनियर बोलता है नोट्स बनाओ। जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं सीनियर बोलता है नोट्स बनाओ। जब हम रिकॉग्निशन में जाते हैं सीनियर बोलता है नाचो, जितनी खुशियां मना सकते हो मनाओ। लेकिन फ्रेंड्स,
आज का जो ये प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको बैठने का मौका मिला। मैं तो एक आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज ऐसे लोगों से मिलने का आपको मौका मिल रहा है। दोस्तों, जब मैंने उनके बारे में जाना तो मैं खुद इतना एक्साइटेड हुआ कि ऐसे लोगों से मिलने का मौका सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू की बदौलत ही मिल सकता, नहीं तो आम आदमी तो ऐसे लोगों से मिल नहीं सकता। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे बीच में आने वाले हैं, यकीन मानिए एक आम आदमी उनसे नहीं मिल सकता है, ऐसे लोग हैं। लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू की बदौलत हमें यह मौका मिला कि ना सिर्फ हम उनसे मिलेंगे, बल्कि हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, और उनसे इतना कुछ सीखेंगे जो कि हमें पूरे विश्व में, पूरे भारत में जिसका प्रचार करना है, जिसको बताना है। सो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन लोग आने वाले हैं। बता दूं आपको? जानना चाहते हैं? उसके लिए मुझे चश्मा भी लगाना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं इनका प्रोफाइल आपको बता देता हूं नटशेल में। सबसे पहले हमारे जो आज चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे मुख्य स्पीकर हैं, वो है डॉक्टर डी रघुनाथ राव। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनके डिग्रीज, इन्होंने आज तक क्या क्या किया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब वो हमारे बीच में आ जाएंगे तो इतने अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा। अभी तो खुल के बोल सकते हैं, घर के लोग बैठे। उनकी जो डिग्रीज है, ही इज बीएससी, एमएससी, पीएचडी, साइंटिस्ट एंड एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जामिया ओस्मानिया, पीओ टर्नका, हैदराबाद। इनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कागज भरे हुए हैं बहुत बड़े बड़े। सबसे पहले इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की जियोलॉजी में, और डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन फ्रॉम नीदरलैंड से इन्होंने न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया। ही हैज जॉइंड आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन 1986। ही इज एसोसिएटेड विद आंध्र पुलिस, कंडक्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये आंध्र पुलिस के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते रहे हैं। He was associated and handled the project on brain fever for 3 years in Madurai. एक बीमारी चली थी ब्रेन फीवर, जिसको लेकर पूरा भारत में बहुत ज्यादा चिंता आ गई थी, बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई थी। उसको लेकर इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल किया मदुरई में। He is currently working as डेप्यूटी डायरेक्टर। ये डेप्यूटी डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और पूरे इंडिया में एजुकेशन और ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। 2003 में जब आंध्र प्रदेश में ब्रेन फीवर पर काम किया गया, तो वहां के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी ने इनको चीफ मिनिस्टर कमेटी में रखा गया, जिसके साथ इन्होंने ब्रेन फीवर के लिए काम किया। इन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैंडल किए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, पुलिस के लिए, रेलवेज के लिए, इंडियन एयरलाइंस के लिए। पुलिस के लिए इन्होंने 2 तरह के प्रोग्राम किए, एंटी नेक्सलाइट प्रोग्राम ग्रे हाउंड प्रोजेक्ट, और एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम ऑक्टोपस प्रोजेक्ट। 300 से ज्यादा प्रोग्राम्स कर चुके हैं। न्यूट्रिशन और हेल्थ पर पूरे भारत में हर जगह पर ये जाकर बात करते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज में इन्होंने काम किया है। उफ, क्या क्या पढ़ूं यार, थक गया हूं। ऐसा लगता है कि एक ही आदमी ने इतने सारे काम किए होंगे, बट यस फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया न्यूट्रिशन के लिए। हमारे दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर अनलव मित्रा। इनकी डिग्रीज, ही इज एमबीबीएस, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। एक बार तालियां होनी चाहिए यार। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। इनको भारत में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया सन 2012 में। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, पब्लिक हेल्थ, डिजीजेस, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। कई पेटेंट्स हैं इनके पास। इन्होंने कई ऐसी रिसर्च की हैं जिनके पेटेंट इनके पास है।
इसके बाद हमारे जो अगले स्पीकर हमारे बीच में आने वाले हैं, ही इज डॉक्टर टी चार्ल्स जॉन भास्कर। इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ही इज बीएससी बायोकेमिस्ट्री विद सब्सिडरीज जूलॉजी एंड फिजिक्स, एमएससी मेरिकल्चर, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जियोमेरीन बायोटेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु। क्या करते हैं ये लोग। दोस्तों, इनको क्या क्या मिला है अभी तक। इनको सन 2010 में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिल चुका है। इनको, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिजीनियस प्रोबायोटिक्स पर काम किया एक्वाकल्चर में। और फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें, जब वो आएंगे तो ज्यादा बता दूंगा आपको। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर प्रताप कुमार साहू। इनके बारे में बताना चाहता हूं। ही इज डेप्यूटी डीन, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्लेसमेंट इंचार्ज, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर से हैं हमारे बीच में। बहुत सारे इनके पास अचीवमेंट्स हैं। ही इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके बाद हमारे जो अगले स्पीकर, हमारे जो अगले साइंटिस्ट हमारे बीच में डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर बी सुबुद्धि। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर। सो फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जो हमारे बीच में आने वाले हैं। इनके नाम सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि होने क्या वाला है। समझ आया क्या होने वाला है? धमाका। ये जो आज इधर में है ना, आज इसको हम पूरा एक तरीके से रिफ्रेश करके जाएंगे, कुछ नया लेकर जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता। आप इससे क्या समझते हैं? हमारे कंपनी ने यह नाम क्यों रखा, जागरूकता अभियान? इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। क्योंकि दोस्तों, अभियान जो भी होते हैं वो शुरू होते हैं एक बहुत बड़े टारगेट को लेकर। आज हमारे सामने जो टारगेट है वो 130 करोड़ लोगों को हेल्थ और वेलनेस को लेकर जानकारी देना है। जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं कि भारत में लिटरेसी रेट क्या है, आप लोग तो जानते हैं कितना है लिटरेसी रेट, मतलब कितने लोग शिक्षित है भारत में, कितने प्रतिशत लोग शिक्षित है भारत में? 70 के आसपास होगा, 70-80, राइट। कितने प्रतिशत लोग कंप्यूटर शिक्षित है भारत में? 7%, 8%, राइट। हर सर्वे थोड़ा थोड़ा अलग बोलता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं भारत में कितने प्रतिशत लोग हेल्थ शिक्षित हैं, जिनको हेल्थ को लेकर जानकारी है? भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको यह पता है कि क्या खाने से फिट रहेंगे, क्या करने से फिट रहेंगे, क्या ऐसा करें कि लाइफ में कभी कोई शारीरिक प्रॉब्लम ही ना हो? क्योंकि हर मानसिक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम से ही जुड़ा होता है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो शायद भारत में 1% लोग भी नहीं है जिनको हेल्थ के बारे में जागरूकता है। थोड़ा थोड़ा सबको पता है, थोड़ा थोड़ा सबको पता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं कुछ किताबों में, कभी फेसबुक पे आ जाता है थोड़ा सा ये खाना चाहिए, कभी बाबा रामदेव हमें बताते हैं वो खाना चाहिए, कभी कहीं से हम इकट्ठा करते हैं। बट इकट्ठा करने के बाद हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या ऐसा करें कि ऊपर वाले ने हमें जो आयु दी है। मैं उस दिन एक किताब पढ़ रहा था बहुत अच्छी, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ऊपर वाले ने हमारे शरीर को 100 साल जीने के लिए बनाया है, 100 years। लेकिन क्या वजह है कि 60-65 आते ही फ्यूज उड़ जाता है? वजह सिर्फ एक है कि हम लोग अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से भाग रहे हैं, हम पैसे के पीछे इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, हम कामयाबी के लिए, बड़े बड़ी कारों के लिए, बड़े बड़े बंगलों के लिए इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि हमारे पास अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं बचा है। और अगर यंग जनरेशन से बात करते हैं तो यंग जनरेशन, सुबह निकलना है, कॉलेज जाना है, सुबह जाते समय लेट हो गए क्योंकि रात को तो फेसबुक पे चैटिंग करनी जरूरी हो गई है।
सुबह नाश्ता क्या करते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, जाते जाते जो मिला मम्मी ने दे दिया, खाते खाते चले गए। लंच क्या होता है, जो मिला, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो एक कोल्ड ड्रिंक हो, जो मिला हम लोग करते करते करते, क्यों हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कंपटीशन का युग है, कंपटीशन का जमाना है, हमारे पास समय ही नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। क्योंकि अगर हमें लगता है, अच्छा आप में से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सबको पता है कि डेली कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना जरूरी है, सभी जानते हैं? कितने लोग करते हैं ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से, झूठ नहीं यहां पर। पूरे हॉल में मुश्किल से 5% लोग हैं दोस्तों जो दिन में 20 मिनट या उसके आसपास एक्सरसाइज करते हैं, जबकि हर आदमी जानता है कि हां एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन मानता नहीं है। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि हम जो जानते हैं उसको मानना शुरू कर दें। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? हम में से हर आदमी जानता है दिन में हमारे डाइट चार्ट में क्या क्या होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या चाहिए, सबको पता है यार। 10th क्लास में सबने पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ा था खाली नंबर लेने के लिए, वो इसलिए नहीं पढ़ा था कि हम अपने जिंदगी पे लागू करें। आज का ये कार्यक्रम, ये जागरूकता अभियान आपको एक बात बताएगा कि आने वाली जिंदगी में ना सिर्फ आप, बल्कि आपके परिवार के सभी लोग, आपके रिलेशन के सभी लोग, आपके हर आदमी का सर्कल 100 से 200 लोगों का है। हम एक बात मानते हैं दोस्तों कि अगर आज हम में से हर एक आदमी हेल्थ और वेलनेस को थोड़ा सा समझ पाए अगर, और इसी ज्ञान का, इसी मिशन का थोड़ा सा प्रचार अपने दायरे में कर दे, तो मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे आने वाले समय में इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़कर हम भारत के 130 करोड़ लोगों को जागरूक बना पाएंगे, सेहतमंद बना पाएंगे और भारत को और ज्यादा मजबूत बना पाएंगे। यस और नो? सो फ्रेंड्स, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, जहां तक मैं देख रहा हूं, बहुत सारे यंगस्टर हमारे बीच में हैं, और यह कहा जाता है कि किसी भी देश की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी युवा पीढ़ी में होती है। आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे बीच में बैठी है, लेकिन युवा पीढ़ी के साथ एक समस्या है। वो समस्या यह है कि टिक के बैठना बड़ा मुश्किल काम है यार। और मेरे साथ भी था। 45 मिनट का जब होता था हमारा एक लेक्चर 45 मिनट्स का, तो उसमें भी हम सोचते थे यार कब निकले यहां से बाहर, राइट? सो आज आपको यह ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आ पाए हैं, कैसे कैसे हमारे कंपनी ने इनको इनवाइट किया है, लेकिन वो जो भी बोलेंगे आपके लिए नया चैप्टर होगा, आपके लिए एक नई चीज होगी। साइंटिस्ट हैं, कुछ ऐसी बातें भी बोलेंगे जो शायद आज आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये ध्यान रखना आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं, आपको उसको समझना भी है, क्योंकि हमको सिर्फ अपने लिए नहीं समझना, हमको समझना है अपने लिए और दूसरों को समझाने के लिए। यस और नो? दोस्तों, दुनिया में आज के समय में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई बन रहा है वो है हेल्थ इंडस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री, क्योंकि इसके बिना गुजारा ही नहीं है। जितना प्रदूषण बाहर हो रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी लाइफ फास्ट हो गई है, टेंशन बढ़ गया, पैसे को लेकर टेंशन बढ़ गया, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, मेडिकल साइंस ने तरक्की की, लेकिन फिर भी आदमी की जो स्वास्थ्य है, जो हमारा शरीर है, उसकी जिंदगी कम होती जा रही है। 65-70 साल, जो लोग ध्यान रखते हैं 80 साल। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग वाकई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को अच्छे से समझते हैं, मेरा मानना यह भी है कि आज भी 100 साल हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहकर, पूरी तरह से जागरूक रहकर, देश की सेवा करके आज भी 100 साल जिंदा रहना संभव है। आपको क्या लगता है? यस, आज भी संभव है। ये कहां लिखा है कि 40 साल का होने के बाद इतना ही पेट बाहर होना चाहिए? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा भाई। ये कहां लिखा है कि 50 साल का होने के बाद ब्लड प्रेशर की दवाई खाना जरूरी है? ये तो किसी ग्रंथ में लिखा नहीं था कि डायबिटीज होगा ही होगा बेटा तेरे को। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमारे डेली रूटीन की वजह से है। हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ नहीं है, इस वजह से है। सो आज आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। आज आपको नाचने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम लोग बहुत ज्यादा
हल्ला उल्ला नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ाई का दिन है। आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं सभी लोग? सो फ्रेंड्स, अच्छा हमारे कुछ साइंटिस्ट आएंगे, तो उनमें से हो सकता है एक दो साइंटिस्ट पूरी तरह से उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। सो हो सकता है आपको कुछ चीजें ना भी समझ आए, हो सकता है कुछ लैंग्वेजेस आपको ना समझ आए, कुछ लोग ऐसी हिंदी बोलेंगे या कुछ लोग जो भी बोलेंगे, बट यस फ्रेंड्स, आपको कोशिश करनी है उसको सीखने की, कोशिश करना कि हम इनसे जितना सीख पाएं। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आज मैं देखना चाहता हूं कि स्मार्ट वैल्यू के जो लीडर्स हैं, आपके जो सीनियर लीडर्स सालों सालों आपको जो ट्रेनिंग्स देते हैं, जो सिखाते हैं, आज उसकी परीक्षा का समय है। आज टेस्ट है कि कौन से सीनियर लीडर ने आपको कितना सिखाया है और आप अपने सीनियर्स की कितनी इज्जत करते हैं। ये आज हम देखेंगे कि कितने लोग 4 घंटे टिक के बैठ पाते हैं। खुजली तो होगी, यार समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा है, सुन लो, रिकॉर्डिंग कर लो, आने वाले समय में यही चीजें सब समझ आ जाएंगी। यस? सो क्या है पेशेंस? 4 घंटे, अरे लाइफ बदल जाएगी यार। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा इनकम है, सबसे ज्यादा पैसा है, उसके बारे में सीखने जा रहे हैं यार। यस और नो? तैयार है? नेक्स्ट 4 आवर्स। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आदत है टिक के नहीं बैठ सकता? सर बहुत प्रॉब्लम है मेरे को, प्लीज हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं है? आप बहन जी ऐसा कीजिएगा, पीछे आ जाइएगा ग्रीन रूम में, यहां पर बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, राइट? कोई बात नहीं अगर किसी को प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब हमारी जिंदगी बदलने वाली है तो उसके लिए सीखना तो जरूरी है। यस और नो? सो दूसरी चीज, हम जब हमारे सीनियर लीडर स्टेज पे आते थे तो हम सीटियां भी बजाते थे, चिल्ला चिल्ली भी करते थे। लेकिन आज सीनियर लीडर स्टेज पे नहीं आएंगे, वो तो आएंगे बट वो ट्रेनिंग देने नहीं आएंगे। आज साइंटिस्ट आएंगे बड़े बड़े, तो उनका जो अभिवादन है हम सिर्फ तालियों से करेंगे और थोड़ा सा सभ्यता हमको दिखाना होगा कि हाँ भाई हम सीखने के मूड से बैठे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस और नो? सो कुछ एक्साइटमेंट हो रही है सीखने की, कुछ नया? दोस्तों एक बात बता दूं, हमारा भविष्य 2 चीजों में है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के बारे में हमारे बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें देते हैं, बट हेल्थ के बारे में हमारा भी ज्ञान सीमित है, हम लोगों की नॉलेज भी सीमित है। सो आज इस सीमित नॉलेज को असीमित करने की एक कोशिश है हमारी। लेकिन इस कोशिश में वही है कि आपको सीखना है ज्यादा से ज्यादा और इस मिशन का हिस्सा बनना है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे काम में 3 चीजें हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे, लर्न इट, देन वी विल डू इट एंड देन वी विल टीच इट। ये 3 काम है हमारे, याद है? फर्स्ट वी विल लर्न इट, आज हमारा सीखने का मौका है। देन वी विल डू इट, फिर हम जो चीजें सीखेंगे उस पर सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। एंड देन वी विल टीच इट, उसके बाद पूरे बंगाल में, पूरे झारखंड, उड़ीसा, जहां जहां से लोग आए हैं, पूरे भारत में इसका प्रचार करेंगे, पूरे भारत को बताएंगे कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जानते हैं आप इस बात को? यस, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि हम फिट रहेंगे तभी तो हम कुछ नया कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, स्मार्ट वैल्यू के लिए। हम तभी कुछ कर पाएंगे फ्रेंड्स जब हम लोग फिट रहेंगे। सो आज एक नई शुरुआत है और मैं तो दिल से, मेरे को जिस दिन से यह पता चला कि एक जागरूकता अभियान की शुरुआत है। अच्छा दोस्तों, अभियान से एक चीज समझ आती है कि आज ये पहला पड़ाव है, आज ये शुभारंभ है, लेकिन इसके बाद ये जो जागरूकता अभियान है ये भारत के हर एक कोने में, भारत के हर एक गांव में, एक कस्बे में, एक शहर में धीरे धीरे ये जागरूकता अभियान फैलेगा और हर जगह पर स्मार्ट वैल्यू और नरिश की बदौलत हम लोग हेल्थ को प्रमोट करेंगे और हेल्थ को प्रमोट करने के साथ साथ हम लोग अपना एक अच्छा करियर भी बनाएंगे और उसके साथ साथ एक नई दिशा में कदम भी रखेंगे। समझ पा रहे हैं? आप कहोगे यार तूने तो अभी से बोर कर दिया, आगे क्या होगा? भाई साहब, जिंदगी में हर अच्छी चीज मजे के साथ नहीं मिलती है।
समझ पा रहे हैं? शिक्षा लेने के लिए एक अलग माइंडसेट से ही बैठना होगा, और इसी के लिए मुझे पहले बताया गया, और मुझे भी ये लगा कि पहले 10-15 मिनट में आपको बता दूं होने क्या वाला है। शांति से बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, सुनेंगे, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जो समझ आएंगी उसको लिखेंगे, जो नहीं समझ आएंगी उसको भी लिखेंगे हम, ताकि बाद में कंसल्ट कर सके हमारे हेल्थ ट्रेनर से। अभी हमारी बात हो चुकी है, हमारे जितने भी हेल्थ ट्रेनर हैं पूरे भारत में, वो आज के इस प्रोग्राम को अपने शब्दों में, आपकी भाषा में, हो सकता है आज जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो आपसे कुछ इंग्लिश में बात करें, कुछ बांग्ला में बात करें, कुछ हिंदी में बात करें, लेकिन हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपकी भाषा में आज के प्रोग्राम को आपको समझाएंगे। आने वाले समय में धीरे धीरे आपके क्षेत्र में, आपके इलाकों में हमारे हेल्थ ट्रेनर्स इसी का प्रचार करेंगे, और इसी प्रोग्राम के शूटिंग जो हो रही है इसको हम पूरे भारत में प्रमोट करेंगे, पूरे भारत के लोगों को बताएंगे इसके बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले, फर्स्ट हैंड। और मैं तो बस वेट कर रहा हूं कि आज का प्रोग्राम कैसे कंक्लूड हो, ताकि इसका जो वो सीडी प्रोग्राम है वो पूरे भारत में जाए, एक एक घर में जाए, ताकि लोग सीख सके हेल्थ के बारे में। राइट फ्रेंड्स? सो आर यू एक्साइटेड? आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट योर हेल्थ? क्या आप भी चाहते हैं कि जब आपकी उम्र 70 साल की हो और आप एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो और सामने से कुछ लोग आए और वो बोले, भाई साहब एक मिनट सुनिए, आप बोले हाँ जी, वो बोले जी आपकी एज कितनी है? आप बोले मेरी उम्र 70 है। वो बोले सर आप तो 30 साल के दिखाई देते हैं। जब आपके साथ के बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की गोलियां खा खा के घूमने जाएंगे, उस समय आप स्विट्जरलैंड के माउंट टिटलिस के पहाड़ों पर यंगस्टर्स की तरह चढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ और आपकी एनर्जी आपके साथ होगी। जैसे भौमिकदा और पार्थादा हमारे साथ गए थे माउंट टिटलिस पे, याद है दादा? बड़ा मजा आता है। हेल्थ चीज ही ऐसी है। सुबह सुबह आप उठे, आपका सिर दर्द हो रहा है, यार आज क्या प्लान शो करना है, सिर में दर्द हो रहा है, यार बदन में दर्द हो रहा है। आजकल की जनरेशन में बहुत सारे जवान बूढ़े पैदा हुए हैं। ये क्या होता है? जवान बूढ़े? हाँ जवान बूढ़े, 22 साल का बूढ़ा, वाह। आज प्लान शो में जाना है, लेकिन जाएगा तो तब ना जब उठेगा, और उठेगा तब तो जब शरीर उठने देगा। सुबह बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहा है 22 साल की उम्र में। सर बड़ी दिक्कत हो गई। क्या? सर मुझे बुखार हो रहा है। अरे भाई बुखार तो हो रहा है, बट आपने कभी सोचा ये बुखार हुआ क्यों? आपने कभी सोचा ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? आपने कभी सोचा आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो जोश क्यों नहीं है? ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आदमी पूरी तरह से फिट है वो पूरा दिन खुश रहेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, उसका दिमाग मानसिक रूप से इतनी एनर्जी उसे देगा कि वो जहां जाएगा चारों तरफ छा जाएगा। एक चीज मैंने नोट की थी, अभी जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, नरेंद्र मोदी जी, उन दिनों में वो चल रहे थे, पूजा के दिन थे, दुर्गा पूजा के दिन थे, और उनके फास्टिंग थे, व्रत थे। पूरा दिन सिर्फ गर्म पानी पीकर वो वहां पर पूरे अमेरिका में विजिट करते थे, अमेरिका में लोगों से मिलते थे। कितनी स्पीचेस होती थी उनकी पूरे भारत में। एक बार जोरदार तालियां, हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी ताकत उनके पास है कि पूरा दिन खाली पेट रहकर गर्म पानी पीकर वो पूरे अमेरिका को हिला दिया। बाराक ओबामा ने भी इस बात को बोला कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि गर्म पानी पीकर ये काम कर रहा है पूरा दिन इतनी एनर्जी के साथ। दोस्तों, ये एनर्जी, ये हेल्थ, ये सिर्फ वेलनेस, न्यूट्रिशन और क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सब चीजें जानने के बाद ही आता है। सो आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे, लेकिन हमारे बस बाकी के और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो आने वाले हैं। लेकिन सिर्फ 5 मिनट में आपको दोस्तों आज ये बताना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि आज जो आप सीख रहे हैं इसको आप अपने ऊपर तो इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन जो आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे आपके परिवार को भी तो वही आदतें पड़ेंगी। यस और नो? आपका परिवार भी तो वही करेगा, आपकी आने वाली जिंदगी में वही तो होगा, आपके बच्चे भी तो वही करेंगे जो आप करेंगे।
सो अगर आज आप कुछ नया सीख जाते हैं, आज आपको पता चलता है कि मुझे कैसे जीना है, तो ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं सीख रहे, आप अपनी आने वाली कई पीढ़ियों को स्वस्थ कर रहे हैं। आप अपनी आने वाली कई पीढ़ियों को एक मैसेज छोड़कर जाएंगे कि जिंदगी को जीना कैसे है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? सो आज जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आप ये सोच कर ले कि ये एक धरोहर है। जिस तरह से भारत सरकार बहुत सारी इमारतों को धरोहर बना देती है, आज की जानकारी आपके पास एक धरोहर है, हेल्थ धरोहर। यस यस यस, हाँ, ये तो मैं चाह ही रहा था। तो आज जो इंफॉर्मेशन है वो एक सांस्कृतिक धरोहर ना होकर एक विरासत आपको मिल रही है हेल्थ के रूप में, जिसको हमें लेना है। और अभी मैं एक आदमी की बात कर रहा था ना, कि जब आप कहीं जाएं और आपकी उम्र हो 55 और सामने से कोई आए और वो बोले जी आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम एक्सरसाइज करते हैं। सामने से कोई आए और वो बोले जी आपकी एज क्या है, वो बोले हमारी एज है 55, बोले आप तो 30 जैसे लगते हैं। मिलना चाहते हो ऐसे आदमी से, जिसने पूरे भारत को एक मैसेज दिया, पूरे भारत को एक संदेश दिया, सिर्फ बोलकर नहीं करके, जिन्होंने करके दिखाया कि एज सिर्फ नंबर्स है, नंबर्स। हर साल एक नंबर बदलता है, बट वो दिन पर दिन और अधिक यंग होते जा रहे हैं, और अधिक जवान होते जा रहे हैं, और अधिक एनर्जी बढ़ती जा रही है उनके अंदर। और दोस्तों, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हम सबके हार्ट थ्रॉब, हम सबके गुरु, हम सबके बड़े भाई और हम सबके चहेते, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। लेट्स वेलकम, आवाज नहीं आई भाई, मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती। গুড মর্নিং। এটা অ্যানুয়াল রেকগনিশন প্রোগ্রাম ডেট নয়, এটা হচ্ছে হেলথ অ্যাওয়ারনেস ডে। ওকে, তো হেলথের ওপর প্রচুর কথা বলার আছে, বড় বড় গুণী লোকেরা অনেক কথা বলবেন, আমি ছোট ছোট কিছু ব্রিফ দিয়ে দিচ্ছি। মানুষ যখন পৃথিবীতে এসেছিল তখন কোনো প্রবলেম ছিল না শরীরে, তখন যা খাবার খেত সব ন্যাচারাল ফুড খেত, কিন্তু খাবার যেটা খেত সেই খাবার থেকে প্রবলেম হয়নি, পপুলেশন কম ছিল। পপুলেশন আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করলো, জমি তো একই আছে, ইয়েস অর নো? প্রচুর পপুলেশন বেড়ে গেল, কিন্তু যেহেতু জমি এক আছে, তাহলে ফসল ফসাবার জন্যে বেশি করে সব কিছু করার জন্যে কেমিক্যাল ইউজ হতে শুরু করলো, তো ইয়েস অর নো? এই কেমিক্যাল যখন সোসাইটিতে এলো, দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য সায়েন্স, তার থেকে যেটা তৈরি হলো সেটার নাম হচ্ছে ডিজিজ, মানে রোগ। ইয়েস অর নো? এই রোগটাকে মোকাবিলা করার জন্যে পৃথিবীতে তৈরি হলো একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি, তার নাম হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি। ইয়েস অর নো? এই ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির বেসিক কাজ হচ্ছিল মানুষের রোগকে সারাবার জন্যে, কিন্তু দেখা গেল ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি কাজটা করতে পারলো না ঠিক মতো, কারণ ফার্মাসিউটিক্যালস মেডিসিন নেভার ওয়ার্ক অন দ্য সেলুলার লেভেল। সেলুলার লেভেলে গিয়ে কাজ করতে পারলো না, কারণ যেটা কাজ করলো, মানুষের শরীরটা তৈরি আছে সেল, টিস্যু অ্যান্ড অর্গানের ওপর। হোয়াট এভার দ্য মেডিসিন ওয়ার্কস, দ্যাট ওয়ার্কস অন দ্যাট অর্গান লেভেল। তাতে অ্যাকচুয়াল রোগের কোনো ক্রিওর হলো না, ডিজিজ তৈরি হতে শুরু করলো। আমরা যখন ছোটোবেলায় পড়াশোনা শুরু করেছিলাম কমার্সে, তখন আমাদের পড়াতো ইন্ডিয়া গরিব দেশ। কেন? ইন্ডিয়া ভিশিয়াস সার্কেল অফ পভার্টি, লোকেরা গরিব ঘরে জন্মায়, গরিব হয়ে মরে। কিন্তু এখন নতুন একটা ইন্ডিয়া হয়েছে, ওয়ান আফটার আনাদার ডিজিজ। ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে ক্ষমতাই নেই ডিজিজকে কিওর করা। এই জন্যে ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, এই সমস্ত প্রবলেম ঘরে ঘরে চলে গেছে। ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীতে একটা লোক শরীরের দিক থেকে ঠিক নেই। সারা ওয়ার্ল্ডে যত পপুলেশন আছে সবাইকার রোগ আছে, আর্থারাইটিস, অ্যাসিডিটি, এগুলো কমন ব্যাপার। ইয়েস অর নো? তাহলে ইন্টার ওয়ার্ল্ড পপুলেশন খারাপ, আর ভারতের অবস্থা আরও খারাপ। এমন লেভেলে খারাপ হয়ে গেছে,
পার ডেতে 20,000 করে লোক হার্ট অ্যাটাকে মারা যাচ্ছে, প্রায় 16,000 করে লোক ডায়াবেটিসে মারা যাচ্ছে পার ডেতে, প্রিমেচিওর ডেথ। মেডিসিন কিচ্ছু রেজাল্ট করতে পারছে না। তৈরি হয়ে গেল পৃথিবীর বুকে একটা নতুন জিনিস, নতুন কনসেপ্ট, নিউট্রিসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি। হোয়াট ইজ নিউট্রিসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি? খাবার থেকে যে জিনিসগুলো পাবো না, নিউট্রিশন রিলেটেড ফুড থেকে পাবো। পৃথিবীর বুকে একটা বিরাট রাজত্ব শুরু করেছে নিউট্রিসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, কিন্তু নিউট্রিসিউটিক্যালসকে ওভারটেক করার রাস্তা আছে। সমস্ত ভিটামিন, মিনারেল, প্রোটিন, প্রক্সিমেটস সবকটাই যে প্রতিটাই যে সবকটা বিরাটভাবে দরকার তা নয়, সব ফুডের জন্য ব্যালেন্সিং দরকার। তো এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড এখন ঘুরছে একটাই কনসেপ্ট, দ্য কনসেপ্ট কল সুপার ফুড কনসেপ্ট। কি কনসেপ্ট? গুগলসে গিয়ে যদি সার্চ করে দেখেন, সুপার ফুড ইজ দ্য আলটিমেট কনসেপ্ট অফ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড স্মার্ট ভ্যালু ইজ দ্য অনলি কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া যারা সুপার ফুড কনসেপ্টে কাজ করে, মোর দ্যান দ্য নিউট্রিশনাল কনসেপ্ট। is the only company in India who works on the superfood, and world এ যতগুলো সুপারফুড আছে তার মধ্যে ননিকে সুপারফুডের মধ্যে প্রথম ক্যাটেগরিতে রাখা হয়েছে। মানি ফ্রিডম কোনো মানে নেই। প্রচুর টাকা আছে, ক্যান্সার খেয়ে বসে আছেন, কোনো লাভ আছে? প্রচুর টাকা আছে, জীবন এনজয় করতে পারছে না, লাভ আছে? ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে দেখে দুঃখ লাগে। আজকে ভারতবর্ষে বিরাট প্রবলেম, ঘরে ঘরে ডিভোর্স। কেন? হাজব্যান্ড সোনার গয়না কিনে দিচ্ছে, সব কিছু কিনে দিচ্ছে, কিন্তু বউয়ের মন জিততে পারছে না। প্রবলেম কোথায়? সেলুলার লেভেলে। বোঝা গেল? ইয়েস অর নো? শারীরিক মানসিক দিক থেকে ফিট হতে গেলে, আমি পরে কথা বলবো, আজকে পৃথিবীর অনেক বড় বড় গুণী গুণী লোক আছেন, ছোট্ট করে একটাই বলছি, আমাদের গ্রেট সুপারফুড ননির ওপর একটা অসাধারণ সেমিনার হবে। তাই সেমিনারে পৃথিবী বিখ্যাত লোকেরা এসেছেন, ভারত বিখ্যাত লোকেরা এসেছেন, এদের জন্য একটা জোরে হাততালি দরকার, ফার্স্টে বিরাট জোরে। বিরাট জোরে আরো ফাটিয়ে দিতে হবে। আজকে আমি কলকাতা লাস্ট 20 দিন ছিলাম না, আমার খুব ধারণা ছিল যদি 20 দিন থাকতে পারতাম খুব ভালো হতো। যারা রেগুলার ননি यूज করছে, थोड़ा हिंदी में तो ललित जी कवर कर दिया, तो थोड़ा सुपर फूड हम बाद में लास्ट में जो सेमिनार एंड होगा मैं आके पूरा हिंदी में ही करूँगा, ठीक है? तो आज এই প্রোগ্রামে অনেক বড় বড় সিনিয়ররা এসেছেন। আমি প্রতিটা সিনিয়রকে বলবো, লিডারশিপ মুখে দেওয়া যায় না, ডায়লগ মেরে দেওয়া যায় না, পলিটিক্স করে দেওয়া যায় না, করে দেখাতে হয়, করে দেখাতে হয়, চেঞ্জ করে দেখাতে হবে। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবে তখন বলবে কারা হাঁটছে না, স্মার্ট ভ্যালুর অ্যাসোসিয়েট হাঁটছে। যখন কথা বলবে তখন আগুন ঝরবে, ঠিক আছে? এই লেভেলে ম্যাট ফিনিশিং স্কিন করতে হবে। এখানে যা কালার দেখতে পারবেন এখানেই তাই কালার দেখতে পারবেন। তার জন্য অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খানকে দেখার দরকার নেই, স্মার্ট ভ্যালু প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাবেন। 50 বছর বয়সে লোকের হার্টথ্রব ক্রিয়েট করবেন, রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যাবে আপনাকে দেখে, এই পার্সোনালিটি ক্রিয়েট করতে হবে, তাই তো? বেতো ঘোড়া দিয়ে কাজ হবে না, বেতো ঘোড়া দিয়ে কাজ হবে? টকবগে হতে হবে। এই টকবগে করে দেবেন উনি, কারণ সেলুলার লেভেলে গিয়ে আপনার শরীরের সমস্ত টক্সিনকে ক্লিন করে দেবে, সমস্ত টক্সিনকে বার করে দেবে। দাঁত মাজেন তো আমরা? দাঁত মাজি আমরা? ইয়েস অর নো? ব্রেকফাস্ট খাই, ঘুমোতে যাই, সব কাজ করি। তাহলে শরীরের মধ্যে প্রতিদিন ক্লিনজিং দরকার। এই ক্লিনজিংটা কে করবে? কে করবে? ননি করবে। সেলুলার লেভেলে গিয়ে ক্লিন করে দেবে, ঝকঝকে তকতকে শরীর হয়ে যাবে, ব্যালেন্সিং করে দেবে। এক্সেস কিছু ফুড ঢুকে গেছে, যেমন প্রচুর লোক স্টোন রিলেটেড প্রবলেমে ভোগেন। কেন? PH4 নেই। এই PH4 কোনো খাবার দোকান থেকে কিনতে পারবেন না, তাজ বেঙ্গলে পাবেন না,
নিউ মার্কেটে গিয়ে কিনতে পারবেন না। কোথা থেকে পাবেন? PH4 নদী থেকে পাবেন। বোঝা গেল? প্রচুর ব্যথার ওষুধ খাচ্ছেন, ব্যথার সাইড এফেক্ট হয়ে যাবে, আপনার কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাবে, অমুক ড্যামেজ হয়ে যাবে। ননি খেলে কিচ্ছু হবে না, অসাধারণ জীবনে আলসার ফর্ম করবে না। এই কিছুদিন আগে আমাদের একজন অ্যাসোসিয়েট, সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট, তার প্রবলেম হয়েছিল গলার। আমি তাকে বলেছিলাম গ্যারান্টি দিয়ে, কিচ্ছু হবে না, ননি খাস, তোর কিচ্ছু হবে না, সব সেরে গেছে ননি খেয়ে। বোঝা গেল? ইয়েস অর নো? আরও সিনিয়ররা চলে এসেছেন। আমি 1 সেকেন্ড আবার ললিতজিকে ডাকবো, পরে আমি সব কথা বলবো। লাস্ট এন্ড অফ দ্য সেমিনারে পুরো ট্রেনিং শুনে যতটুকু বুঝতে পারবো বেস্ট লেভেলে কথা বলার চেষ্টা করবো। এনজয় দ্য প্রোগ্রাম। बोले 1 सेकेंड आई वेलकम मिस्टर ललित अरोड़ा। ललित जी आप आ जाइए। ऑल द सब आ गए। थैंक यू दादा, एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आज ऐसी जानकारी आपके समक्ष रखी जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक नई जिंदगी हम सबको मिलने वाली है और हमारे जरिए लाखों करोड़ों लोगों को ये एक नया मैं इसे कहना चाहूँगा नया ज्ञान मिलने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं। तो जैसा कि हम हर एक कार्यक्रम की शुरुआत ऊपर वाले उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं दोस्तों, कोई भी अभियान हो, कोई भी काम हो, जब तक उसको ऊपर वाले को परम पिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जब तक उनको हम अपने बीच में याद नहीं करेंगे, हमें लगता है कि कोई भी काम अधूरा रह जाता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर एक बार उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। और दीप प्रज्वलन के लिए दोस्तों मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानता हूं कि आज मुझे ये मौका मिला इन लोगों को स्टेज पर बुलाने का, आमंत्रित करने का। सो हमारे बीच में विराजमान है हमारे कंपनी के स्मार्ट वैल्यू की आंखें, स्मार्ट वैल्यू की दूरदृष्टि, जिन्होंने एक विजन देखा कि पूरे भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ अलग किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कैसे जिया जा सकता है, वो आज हमारे बीच में है। तो मैं सबसे पहले स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा आवर ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर। लेट्स वेलकम मिस्टर संजीव पाठक। और दोस्तों इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कंपनी के यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक, आवर ग्रेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेट्स वेलकम मिस्टर त्रिमूर्ति रागी। इस दीप को प्रज्वलित करने के लिए मैं अब स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके दिलों की धड़कन, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक सपना दिखाया हेल्थ का हम लोगों को, हमारे बीच में मौजूद है हम सभी के गुरु मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती। ओके दोस्तों, यही तो मजा है। जब हम स्कूल जाते थे और पढ़ाई करते थे तो कुछ कुछ बोर होते थे, बट आज जो पढ़ाई मिलने वाली है, आज जो ज्ञान मिलने वाला है, उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। सो आइए हम सब लोग मिलकर अपने चीफ गेस्ट को आमंत्रित करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा अ ग्रेट पर्सनालिटी, अ ग्रेट साइंटिस्ट। आई वुड वेलकम मिस्टर डी रघुनाथ राव। प्लीज गिव अ बिग हैंड। एक जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आवर गेस्ट, आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर टी चार्ल्स जॉन भास्कर। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। नाउ फ्रेंड्स, हमारे बीच में आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बहुत ही महान शख्सियत जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए और अभी तो शुरुआत है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं।
मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर प्रताप कुमार साहू। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। और फ्रेंड्स, अब हमारे बीच में जो शख्सियत है जिनका हम इंतजार कर रहे थे, और मैं जानता हूं दोस्तों आज ज्ञान के भंडार हमारे बीच में है, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर डॉक्टर बीबी सुबुद्धि। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू का कोई भी अभियान, कोई भी मिशन, कोई भी काम हमारे ग्रेट लीडर्स के बिना संभव नहीं है। कोई भी काम हो, सब मिलकर अगर हम करते हैं तो वो काम 1 और 1 11, 1 1 1 111, और ना जाने यहां पर लाखों लोगों को जोड़ा जा चुका है इस अभियान में, जागरूकता में। और जिन लोगों की बदौलत ये शुरू हुआ, जिन लोगों ने इसमें काम किया, जिन लोगों ने आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले एक सपना देखा कि भारत को एक विकसित भारत कैसे बनाना है, एक डेवलप कंट्री कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, उनमें से कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आवर ग्रेट लीडर, लेट्स वेलकम मिस्टर विश्वनाथ भौमिक। ओके, इसके बाद दोस्तों मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा आवर ग्रेट लीडर, आवर ग्रेट पर्सनालिटी पूरे भारत में, जिन्होंने काम करके दिखाया और दिखाया कि किस तरीके से एक आदमी पूरे भारत को हिलाकर रख सकता है। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर सुजोय रॉय। नाउ फ्रेंड्स, हमारे अगले लीडर बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ, निस्वार्थ भावना से जो काम करते हैं पूरे भारत में। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर पार्थ भौमिक। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक आकर्षक पर्सनालिटी, एक बहुत जबरदस्त इंसान जिसने नॉर्थ ईस्ट से लेकर देश के हर कोने में स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रचार किया। हमारे बीच में है, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर अरविंद जायसवाल, जिनको मेरी नजरें बहुत देर से ढूंढ रही थी। मुझे लगा था अभी वो शायद रास्ते में है, बट पता चला वो आ चुके हैं। हम सभी के एक ऐसे इंसान जिन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया, जिन्होंने एक समय पर हम सबको ये बताया कि किस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रचार करके हम पूरे भारत को जागृत कर सकते हैं। हमारे बीच में है अ ग्रेट लीडर, लेट्स वेलकम मिस्टर राणा सरकार। ओके, तो अभी नजरें गई हैं एक ऐसा इंसान जिसके बारे में हम लोग अक्सर कहते हैं कि जब वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो फिल्म एक्टर्स की याद आती है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो समाज सेवा के लिए उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं कि दिल खुश हो जाता है। हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर मौजूद है, लेट्स वेलकम मिस्टर सुमित्रा कुंडू। ओके, तो फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे एक ऐसे ग्रेट लीडर जिन्होंने भारत के कोने कोने में अपने नाम का परचम लहराया, जिन्होंने दिखाया कि विश्वास और मेहनत के बल पर इंसान कुछ भी जीत सकता है। हमारे बीच में मौजूद हैं वो ग्रेट लीडर, लेट्स वेलकम मिस्टर सुरजीत मैती। और फ्रेंड्स, अब हम सब लोग मिलकर आइए आप सभी के मौजूदगी में एक इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन एक इतिहास है। जब आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल में आने वाली जनरेशन याद करेगी कि एक दिन था जिस दिन स्मार्ट वैल्यू ने नरिश के बैनर तले एक अभियान शुरू किया था, जागरूकता अभियान, हेल्थ एंड वेलनेस, और उसकी बदौलत हम भारत के करोड़ों लोगों को जीना सिखाएंगे। आज आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि आपको मौका मिला इधर आने का, और मैं खुद भी महसूस करता हूं इस मिशन में मेरे को जुड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आइए सर, और हम लोग दीप प्रज्वलन के साथ एक बार इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भूल
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज सर टेक योर सीट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द स्टेज। मैं चाहूंगा अभी सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें और हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, क्योंकि जागृति की एक ज्वाला जल चुकी है, इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों यकीन मानिए, जैसे ही ये ज्वाला जल रही थी वैसे ही मन में एक ज्वाला जल रही थी कि शायद आज कुछ नया होने वाला है, शायद आज भारत के इतिहास में कुछ एक नया पन्ना जुड़ने वाला है जो कि आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। क्योंकि दोस्तों हेल्थ और वेलनेस से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है, ये बात हम सब ने सुनी हुई है। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं उस इंसान को बुलाना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम के प्रणेता हैं, जिनके मार्गदर्शन पर आज से 15 साल पहले यह शुरू हुआ और जिन्होंने एक सोच रखी, मन में एक सोच थी कि कुछ अलग करना है इस देश के लिए, कुछ अलग करना है हमारे लोगों के लिए, कुछ अलग करना है हमारे समाज के लिए। उस इंसान को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो चंद शब्दों से हमें बताएं, कुछ हमें मार्गदर्शन दें, कुछ राह दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे एक अभियान को जो 15 साल से चल रहा है वो शुरू किया। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा आवर ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर, लेट्स वेलकम मिस्टर संजीव पाठक। जोरदार तालियों के साथ मैं पाठक जी को वेलकम करना चाहूंगा। Good morning, friends. A very warm and healthy morning. सबसे पहले मुझे काफ़ी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है इस नरिश हेल्थ एंड वेलनेस जागरूकता अभियान को शुरुआत करने के। दोस्तों मैं आज जो भी कहना चाहूँगा उसके पहले मैं आपको एक छोटी क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ इस हेल्थ के बारे में कंपनी और हमारे एसोसिएट्स ने क्या क्या छोटे इनिशिएटिव्स अभी तक लिए हैं। इशू है, इट विल टेक सम टाइम टू रन दैट वीडियो। कोई बात नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आज जो हमारा प्रोग्राम है पूरा स्वास्थ्य के बारे में है और हम जानते हैं कि पूरे भारत में हमारी कितनी जनसंख्या है, 130 CR, am I right? जो हमारा मिशन है उसके हिसाब से हमारा मेन फर्ज ये है कि ना कि हम बाकी हमारे पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है और कैसे हम अपने भारत को, अपने देश को स्वस्थ और मजबूत भारत बनाए। एम आई राइट? दोस्तों आज से करीब आई थिंक 9 और 10 ईयर्स बैक एक बार हम सब लीडर्स बैठ के बात कर रहे थे तो ये ख्याल आया कि हम क्या करें जिससे हमारे हर नागरिक को एक स्वस्थ नागरिक बनाया जाए। और तब हमने एक नारा दिया था, कन्वर्ट ऑल सिटीजन टू हेल्दीजन। और इस नारे को लेकर पिछले कई सालों से हमारे सारे एसोसिएट्स पूरे देश भर में बहुत लगन से काम कर रहे हैं, इस हमारे हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति दोस्तों क्या होती है? स्वास्थ्य। एम आई राइट? और ये पूरा बीड़ा हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे सब यंग एसोसिएट्स हैं उनके हाथ में है और हमारे सारे यंग एसोसिएट दिन रात मेहनत करके इस हेल्थ अवेयरनेस को पूरे दोस्तों भारत में फैला रहे हैं। आज स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से हम अपने आधुनिक स्वस्थ युवा और मजबूत भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जहां हर आदमी स्वस्थ होगा, हर आदमी शिक्षित होगा और हर एक आदमी के पास रोजगार होगा, सफलता होगी। दोस्तों इसी सपने को लेकर हमने ये अभियान शुरू किया है, उसकी आज शुरुआत है और आने वाले कुछ सालों में ये अभियान हम देश के हर राज्य में करेंगे। दोस्तों इस अभियान को शुरुआत आगे करने के लिए हम सबको एक शपथ लेनी होगी कि हम सब निस्वार्थ भाव से अपने लोगों के लिए, इस देश के लिए, इस मानवता के लिए तन, मन और धन से इस अभियान में शामिल होंगे। इस अभियान को स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ महान हस्तियों को बुलाया है जिन्होंने अपने बहुमूल्य योगदान से हेल्थ और अवेयरनेस के क्षेत्र में बहुत बड़े शोध किए हैं, अनुसंधान किए हैं, जिससे उन्होंने कई परिवर्तन पैदा किया है देश के अंदर स्वास्थ्य के बारे में।
मैं डॉक्टर डी रघुनाथ राव, डॉक्टर एनएलवा मित्रा, डॉक्टर टी जैल्स जॉन भास्कर, डॉक्टर प्रताप कुमार साहू एंड डॉक्टर बीबी सोबेदी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि वो हमारे इस अभियान में अपने बहुमूल्य एक्सपीरियंसेस के साथ एक नए रक्त का संचार करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आई वुड रिक्वेस्ट मूर्ति टू प्ले द वीडियो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा सर 2 मिनट स्टेज पर ही आप रुकें और मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा एक ऐसे शख्स जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने एक नई सोच के साथ इस काम को शुरू किया और पूरे भारत को हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए जिन्होंने शपथ लिया। ओके, सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है उन महान शख्सियतों को स्टेज पर आमंत्रित करने का, जिनकी वजह से आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जो अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ बूंदें आज हम लोगों को देने आए हैं और इसी उम्मीद से आए हैं कि इन बूंदों को हम पूरे भारत में फैला देंगे, पूरे भारत में इसका प्रचार करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा आवर ग्रेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर त्रिमूर्ति रागी जी का। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और हम सभी के सीनियर आवर ग्रेट गुरु, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर पार्था चक्रवर्ती। दादा, पार्था के लिए जोरदार तालियां एक बार। और फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू फेलिसिटेट आवर ग्रेट डिग्निटरीज जो हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर डी रघुनाथ राव जी का। डॉक्टर डी रघुनाथ राव, ही इज कमिंग, ओके। और उसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच में आ चुके हैं डॉक्टर अनलव मित्रा जी का। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब का। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। हम चाहते हैं कि एक बार आप सबके बीच में आए। हमारे बीच में आ चुके हैं डॉक्टर डी रघुनाथ राव जी। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। सर प्लीज। डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए स्टेज पर विराजमान है आवर ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव पाठक, मिस्टर त्रिमूर्ति रागी और हम सब के दिलों की धड़कन मिस्टर पार्था चक्रवर्ती, जिनको देख देख कर हमें याद आती है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ अलग करना है। आओ एक नए युग की शुरुआत करें और उनका स्वागत करने के लिए हमारे बीच में और इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा अ ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर टी चार्ल्स जॉन भास्कर। जोरदार तालियों के साथ चले आए। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर प्रताप कुमार साहू जी को। जोरदार तालियां डॉक्टर प्रताप कुमार साहू जी के लिए। चले Shadow, 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 harsh, इसके बाद मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर बीबी सुबुद्धि जी का। जोरदार तालियां। चले shadow, shadow, shadow.
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 15 साल हो गए इस युग की शुरुआत हुए। स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी सोच, बहुत सारी विचारधाराएं हमारे बीच में आज हैं, और हम आज उम्मीद करते हैं कि आज वो कुछ मिलने वाला है जिसका इतिहास गवाह होगा। और इसको लेकर एक बहुत अच्छा हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी तैयार किया है। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आज अभी आप जो एक कार्यक्रम कंपनी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, जो ये बनाया है, इसको लेकर आपको समझ आएगा कि पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, और किस तरीके से आज पूरे भारत के कोने कोने में, आज पूरे भारत के गली कूचे, गांव, नगर, बस्ती, कस्बे, शहर, हर जगह पर इसका प्रचार हो रहा है। और सिर्फ एक नारा दिया जा रहा है, आइए हम सब मिलकर भारत को स्वस्थ बनाएं, आइए हम सब मिलकर एक नए युग की शुरुआत करें, और हम लोगों को बताएं कि एक बार फिर भारत सुपर पावर बनने की शक्ति रखता है, क्योंकि भारत में युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा है, भारत में यूथ सबसे ज्यादा है। और जिस दिन ये यूथ जाग गया, जिस दिन ये युवा पीढ़ी जाग गई, भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। इसी एक उम्मीद के साथ, इसी एक कोशिश के साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा पाएं, क्योंकि महान चीजें थोड़ी मुश्किल से ही आती हैं। तो एक महान चीज हमारे पास लैपटॉप में है, वो भी थोड़ी मुश्किल से आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। बट दोस्तों, कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है या नहीं? सब्र का फल मीठा होता है। और आज इन सभी लोगों से मिलने के लिए हमने बहुत सब्र किया।